Hey friends, welcome back to my channel. In this video, the question is from real numbers. The question is prove that root 2 is irrational number. So guys, this question comes every time in board examination. This question has also come in your pre-boards and you have noticed this thing also. So I'm going to show you how to prove root 2 is irrational number, and you do not need to mug up this proof because I'm going to tell you some points that you need to remember while doing the proof of this question. So let's get started. So guys, इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको मैं एक चीज बता दूं कि इस क्वेश्चन को किस मेथड से किया जाता है। जो भी प्रूफ है, जहां पे आपको बताना है, जहां पे आपको प्रूफ करना है कि दिस नंबर इज इरेशनल, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उसका रिवर्स लेके चलना है। यू हैव टू टेक द ऑपोजिट, मींस आपको ये लेके चलना है कि वो नंबर इरेशनल नहीं है, वो रेशनल है। और रेशनल है तो उसको फिर उसके अकॉर्डिंग हम लेके चलेंगे कि ये रेशनल है, और रेशनल के साथ हम उसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। और उसके बाद आपको उसी में ही कुछ ऐसे प्रूफ करना है कि वो ये साबित हो जाए कि वो रेशनल है ही नहीं। सो इस मेथड को हम बोलते हैं मेथड प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन, जिसमें कि हम इसको ऑपोजिट हमने माना है दैट root 2 is rational. So now I'm gonna start this proof. So आपको सबसे पहले क्या लिखना होता है? You have to write, let us assume that root 2 is rational number. Okay, so we have taken the reverse. It is a rational number. So you know very well that rational number is represented in the form of P upon Q. So root 2 को हम लिख सकते हैं A upon B. You can also take P upon Q. You can take any symbol that you be comfortable with. So मैंने यहाँ पे A upon B लिया है. P upon Q भी ले सकते हो. A upon B, जहाँ पे जो न्यूमरेटर पे A है और जो डिनोमिनेटर पे B है, they are first of all integers. A and B are integers. Okay, where B, the denominator, is not equals to 0. Okay, and one thing to note, and you have to mention here, that A and B are integers plus co-prime. ये इंटीजर्स तो होते ही हैं, साथ ही साथ ये co-prime भी होते हैं। co-prime numbers क्या होते हैं guys? co-prime numbers are those numbers whose highest common factor is 1. So A and B जो होंगे ऐसा नंबर होगा जो कि अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में होंगे और उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है। तो हमें इसी पॉइंट को ही रिमेंबर करके इस पूरे प्रूफ को सॉल्व करना है, हमें ये पूरा प्रूफ दिखाना है। तो पहली चीज तो आपको इस प्रूफ को करने से पहले यू हैव टू रिमेंबर दैट यू आर यूजिंग अ कॉन्ट्रडिक्शन मेथड, जहां पे आपको उसका उल्टा लेके चलना है। दैट यू हैव टू अज्यूम दैट रूट 2 इज अ रेशनल नंबर एंड देन यू हैव टू राइट इन दिस वे। ओके, अब यहाँ पे A and B है co-prime, that means इनका highest common, there is only one factor of these two number, that is 1. लेकिन आपको इस तरीके से प्रूफ करना है कि उसका एक और फैक्टर आ जाए, क्योंकि अगर एक और फैक्टर आ जाएगा तो A और B co-prime नहीं रहेंगे, और जब ये co-prime नहीं होंगे तो वो रेशनल नंबर भी नहीं रहेगा, and you will get your proof. So now this is your first expression, or you can say an equation, root 2 equals to A upon B. अब इसमें आपको क्या करना है? इसके बाद you have to square both side of this equation. So you will write squaring both side. Just follow the steps that I'm doing and you will finally understand this. Okay, तो अभी हमने इसका स्क्वायर किया है, तो स्क्वायर करने के बाद आपको क्या मिलेगा? You will get 2 on the left hand side and A square upon B square. Then you will do cross multiplication, then you get A square equals to 2B square, and then mark this as equation number 1 because this equation we are going to use later on. So now you need to understand this equation, A square equals to 2B square. इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि A square is going to be a number which is a multiple of 2, क्योंकि right hand side पे 2B square है, तो B basically एक integer है, right? An integer
कोई सा भी इंटीजर हो सकता है। दैट मीन्स कि वो कोई भी इंटीजर है लेकिन वो 2 का मल्टीपल होगा, मीन्स एक ऐसा नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पे then you have to you have drawn a conclusion out of it that therefore a square is a multiple of 2, right? a square एक ऐसा नंबर है जो कि 2 से डिवाइड हो सकता है। सो नाउ प्लीज हमें a स्क्वायर और b स्क्वायर से मतलब नहीं है, वी हैव टू डू विथ a एंड b। हमें a और b से, ठीक है, हमें काम करना है। तो a अभी a स्क्वायर से आया, तो नाउ यू विल अगेन यू हैव टू राइट दिस पॉइंट दैट इफ a square is a multiple of 2 then a will also be a multiple of 2। अगर a square 2 का मल्टीपल है तो a भी 2 का मल्टीपल होगा ही। ऑफ कोर्स a square is a square of a number which is a, ठीक है, तो उसका जो रूट होगा वो भी 2 का मल्टीपल होगा। so then you will have to write here therefore a is also a multiple of 2। सो गाइज ये जो मैं पॉइंट्स लिख रही हूँ, ये जो एक्स्ट्रा कंक्लूजन जो मैं लिख रही हूँ, ये जो कंक्लूजन आया, ये फर्स्ट कंक्लूजन आया, और ये इंपॉर्टेंट है, ये इसका फर्स्ट स्टेप है इस प्रूफ का जो हमने फिनिश कर दिया। हमने ये प्रूफ कर दिया कि a इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 2 विच मीन्स दैट अभी तक a का एक ही फैक्टर था, a और b का देयर वाज ओनली वन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, बट नाउ a का एक मल्टीपल है जो कि मींस a का एक फैक्टर बन चुका है, 2 है, ठीक है। तो मींस a एक ऐसा नंबर है जो कि 2 से डिवाइड हो सकता है। अब हमें क्या प्रूफ करना है, अब हमें यही सेम चीज b के साथ भी प्रूफ करनी है। तो देखिए b के साथ हम कैसे कर सकते हैं इसको। सो नाउ गाइस, अब मैंने यहाँ पे क्या प्रूफ किया है कि जो a है एक 2 का मल्टीपल है, ठीक है, एक ऐसा नंबर है जो 2 से डिवाइड हो सकता है, which means a 2 भी हो सकता है, it can be 4, it can be 6। इसका मतलब कि a जो है वो 2k है। यहाँ पे k क्या है, here यहाँ पे आप लिख दीजिए कि जो k है एक नेचुरल नंबर है। k is a natural number and natural number starts from 1, okay। That means that if k is 1 that means a 2 है, if k is 2 then a है 4। तो a क्योंकि a is a multiple of 2 तो हम a को 2k लिख सकते हैं। नाउ अब आपको एक इक्वेशन जो मैंने आपको पहले बताई a square equals to 2b square, वहां पे आपको a की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है विद दिस वैल्यू a equals to 2k। सो यहाँ पे आप लिखिए पुट द वैल्यू ऑफ a in equation number 1, ठीक है। तो अब हम इसकी वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, which is what is a की वैल्यू क्या है 2k, तो 2k का स्क्वायर equals to 2b का स्क्वायर, I mean 2b square। So 2k का whole square which will be 4k square equals to 2b square। So now you can just simplify this, so you will get 2k square equals to b square। So you have to mark this as equation 2। So guys again आपको वही सेम इक्वेशन मिली है जो पहले आपको a स्क्वायर से मिली थी, अब वो आपको b स्क्वायर से मिली है, तो b स्क्वायर भी आ गया है 2k स्क्वायर। सो यहाँ पे इसका क्या मतलब हुआ कि b जो स्क्वायर है वो भी 2 का मल्टीपल ही है, बिकॉज k इज अ नेचुरल नंबर, राइट, बट अगेन इट इज मल्टीप्लाइड विद 2। सो एनी नंबर k कोई भी नंबर होगा, फाइनल आंसर एक 2 का मल्टीपल ही होगा। तो b स्क्वायर भी 2 का मल्टीपल है, b स्क्वायर एक ऐसा नंबर है जो 2 से डिवाइड हो सकता है। सो अगेन आपको वही सेम स्टेप्स, आपको वो सेम लाइन लिखनी है जो हमने पहले a के लिए लिखी थी। तो therefore b स्क्वायर इज अ मल्टीपल ऑफ 2, okay। So now if b square is a multiple of 2 that means b is also a multiple of 2। So guys हमने इसके प्रूफ को कंप्लीट ऑलमोस्ट कर दिया है, क्योंकि हमने ये प्रूफ कर दिया कि a और b दोनों ही 2 के मल्टीपल है। What does that mean? इसका मतलब ये है कि 2 is a factor of a and b and you have to write it down। So 2 is a factor of a and b, but this contradicts the fact
but this contradicts the fact. कौन सा fact? ये fact that A and B are co-prime numbers, because earlier I said, we stated that A and B are co-prime numbers, right? Because co-prime numbers are those numbers whose HCF is 1. But now there is another factor of A and B. So now they are no more co-prime numbers. ये co-prime numbers नहीं है, now they are composite numbers, right? तो क्योंकि अब ये co-prime नहीं रहे हैं और हमारा जो contradiction वाला method है उसको हमने opposite proof कर दिया है. So now you can simply write down, therefore root 2 is an irrational number. And this is the end of your proof, guys. These are all the steps. If you want, you can note down in your notebooks and then you can just recall all these steps. Just remember two things, that this proof is based on contradiction method. Secondly, you have to keep in mind कि आपको उस proof के अंदर करना क्या है, क्योंकि अगर आपको नहीं पता होगा proof के अंदर करना क्या है, so you will have to, just learn these steps. और क्या होगा अगर आप step भूल जाओगे तो आपका proof भी सारा गलत हो जाएगा. तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमें जो A और B हमने माना है या P और Q लिया है हमने, हमें उसको कोप्राइम को गलत प्रूफ करना है ना? हमें ये गलत प्रूफ करना है कि वो कोप्राइम नंबर्स नहीं है. और ये अगर आपको आ गया समझ में, then everything is yours. So guys, thanks for watching this video. I hope you understood this proof well, and see you soon in the next, guys. Till then, take care. Bye.